Okay, so till now we had discussed firstly the early medieval India, then we discussed the Deccan Sultanate, then we discussed the Mughal Empire, and after that we had discussed about how the other communities like the tribes, the nomads, the settled agriculturists, they evolved and the story around them, right, on how they intermingled with one another, or not intermingled with one another, but how they tried to reach to others' position, right, and in that you can say aspirations, some reached, some left, and in that sense a divide was created between them also, right. And after that we had read about the Bhakti movement and the Sufi movement in the North India. We read कि एक early form of bhakti था in the early millennial in the early centuries of this millennial after since the CE started आफ्टर बट वो जो लिटरल फॉर्म ऑफ भक्ति है मूवमेंट है वो नहीं आया था एंड इट फर्स्ट केम इन साउथ इंडिया द मूवमेंट द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया इट केम ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सूफी मूवमेंट द मूवमेंट ऑफ द साउथ इंडिया एज वेल एज जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे थे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, उसके कारण से द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया केम एंड आप वी हैड डिस्कस द क्रोनोलॉजी एंड एवरीथिंग द डिटेल्स, राइट, एंड आई टोल्ड यू कि फर्स्टली पोएट सेंट्स कौन कौन से हैं किस रीजन में आपको क्लियरली पता होना चाहिए. सेकेंडली यू शुड बी अवेयर अबाउट द टाइमलाइंस एज वेल, ठीक है. एज फार एज यू कैन से कि जो कोर मिडिवल इंडिया है उसका थीमेटिक स्कोप है वो यहीं पर खत्म हो जाता है, राइट. आफ्टर दिस जो चैप्टर्स एनसीईआरटी में दे आर मोर डिस्कसिंग अबाउट यू कैन से सम ऑफ द कल्चरल एस्पेक्ट्स, ठीक है. सो दिस चैप्टर द सेवेंथ चैप्टर इज अबाउट द मेकिंग ऑफ द रीजनल कल्चर्स कि कुछ रीजनल कल्चर्स लोकल कल्चर्स जो बने थे, ठीक है, उनका क्या बेसिस था एंड व्हाट वाज द जेनेसिस ऑफ दैट कल्चर या फिर व्हाट कैन बी दैट कोर थिंग जिस to which you can trace that culture, right. The next chapter talks about ki as the Mughal Empire was declining and the European powers were coming in, तो किस तरीके का पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, एंड व्हाट वर द रीजंस फॉर द सेम एंड उसकी कुछ डिटेल्स, राइट. सो द सेवेंथ चैप्टर इज अबाउट द मेकिंग ऑफ द रीजनल कल्चर्स, राइट. यहाँ पर इन्होंने बहुत ही बेसिक बताया हुआ है कि one of the commonest ways which we can describe people is in terms of the language they speak. We also tend to associate them with the food, the clothes, the poetry, dance, music, and painting. ठीक है. However, the frontiers separating the regions have evolved with time. Regional cultures are often the product of the complex processes of intermixing of local traditions. As we will see, some traditions appear specific to some regions, others seem to be similar across regions, yet derive from older practices. तो ये सब कहानी बताई गई. नीचे examples देंगे. The first example they have taken out is the connection between the language and the culture of a region, right? And that is the language is the prominent determinant कि एक region में कौन सा culture आएगा. And they have taken example of Kerala, right? An example of the connection between the language and the region. The Chera kingdom of Mahodayapuram, right? पहले प्रीलिम्स के लिए याद रखना. Established in 9th century. तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि महादोयापुरम किससे एसोसिएटेड है या फिर कौन सी सेंचुरी के लगभग स्टैब्लिश हुई थी. जैसे इस साल गढ़वाल ऑफ कन्नौज और इसे पूछ लिया, ठीक है. इन द प्रेजेंट डे केरला मलयालम was spoken in this area. The rulers introduced the Malayalam language and script, and it is one of the earliest examples of the use of a regional language in official records. Otherwise, हमें पता है कि Persian and Sanskrit were majorly used for official records, right? Regional language का use हमें देखने को मिला. The Cheras also drew upon Sanskritic traditions. तो एक साइड पे they were using regional language and एक साइड पर they are using Sanskrit as well. ठीक है. The temple theatre of Kerala borrowed stories from Sanskrit epics. The first literary works in Malayalam are directly indebted to Sanskrit. A 14th century text, Lila Tikalam, dealing with the grammar and poetics, composed in Mani Prabhalam,
Literally diamonds and corals refer to two languages, the Sanskrit and the regional languages. जो कुछ इसमें समझने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है. इट इज ऑल अबाउट कि ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं. क्या क्या पूछ सकते हैं? वन इज दिस थिंग, राइट? वन इज व्हाट इज दिस थिंग, या व्हाट इज दिस एसोसिएटेड विद. अदरवाइज आप समझ गए हैं. द स्टोरी हियर इज कि केरला में दोनों लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ एंड उस कारण से जो रीजनल कल्चर डेवलप हुआ दैट रिवॉल्व्ड अराउंड those languages, right? This is the story here. The next example they are talking about is how a particular religious tradition influences the culture of that particular region. And here they have taken example of Lord Jagannath in Odisha, right? So Lord Jagannath ke around the local deity that was being worshipped, a form of Vishnu, right? Unke around एक अलग culture develop, right? So this is what they are talking about. Rulers and the regional traditions, the Jagannath cult. In other regions, regional cultures developed around the religious traditions. The best example is the cult of Jagannath, Lord of the World, a name for Vishnu, at Puri, Odisha. Local tribal people made the wooden image of the deity. आपको आज भी पता है, right? Of Lord Jagannath, wooden images बनाई जाती हैं, which originally was a local god who was later identified with Vishnu. ठीक है, तो intermingling had started to happen, and this was a way of diluting the orthodox religion. ये हमने कल भी बात की थी कि when Brahmanism felt कि it needed to dilute, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था. वन वाज तो पुरानिक स्टोरीज एंड उसमें जो है कि इट वुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन. ठीक है. द सेकंड वन वाज कि लोकल गॉड्स को इंपॉर्टेंस दी जाने लगी एंड टू क्रिएट एन एसोसिएशन विद द लोकल गॉड्स एंड द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस, या फिर यू कैन से हिंदुइज्म. ठीक है. क्या किया गया था फिर कि इट वाज शोन कि दीज लोकल गॉड्स आर अ फॉर्म ऑफ विष्णु, राइट? सो पीपल वर्शिप द लोकल गॉड्स and also look upon them as a form of Vishnu, right? या फिर a form of Shiva, जैसे let's say you can say example of Virupaksha, right? In the 12th century, the Ganga rulers, Ganga dynasty, Anantavarman established a temple for Purushottam Jagannath at Puri. Subsequently, Anang Bhima III proclaimed himself as the deputy of the god. So, of course, ये rulers के साथ आपको हमेशा ही मिलेगा कि whichever god people identify themselves with, या people feel कि this god or this regional religious tradition somewhere represents them, so rulers will always try and identify with that particular religious tradition, right? तो यही किया था. उड़ीसा की कहानी मैंने आपको बताई हुई है थोड़ी सी कि वहां पर गंगा डायनेस्टीज इन द अर्ली मिडिवल इंडिया टू समवेयर यू कैन से टिल द टाइम 11th-12th सेंचुरी के आसपास, तब तक वो थी वहां पर 13th सेंचुरी. एंड उसके बाद जो वहां पर आती दैट इज द गजपतीज ऑफ उड़ीसा. ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया. As the temple gained in importance as a center of pilgrimage, its authority in social and political matters also increased. All those who conquered Odisha, like the Mughals, the Marathas, East India Company, attempted to gain control over temple. Again, ये हम पहले बात की है कि in respect of मोहम्मद गौरी या फिर महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, प्लस लेट्स से अहमद शाह अब्दाली एंड ऑल दीज, या फिर कोई भी रूलर्स भी रहे हो, whenever you will try and cross a particular territory and establish a control over that territory, आपका एक प्राइम टारगेट होता है कि वहां की जो लोगों की भावना जिन चीजों से रिप्रेजेंट हो रही है उसके ऊपर किसी तरीके का कंट्रोल करने की, राइट? सो हियर द एग्जांपल दे हैव टेकन अपॉन इज कि कैसे एक लोकल गॉड के या फिर लोकल रिलीजियस ट्रेडिशन के आसपास एक कल्चर डेवलप, राइट? तो फर्स्ट एग्जांपल वी सॉ ऑफ केरला, जहां पर लैंग्वेज के अराउंड एक कल्चर बना, यहाँ पर रिलीजियस ट्रेडिशन के आसपास एक कल्चर बना, राइट? ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में जो पूछने लायक है वो मैं आपको बता रहा हूँ. मेंस में जो इसमें से पूछा जा सकता है दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन लाइक दिस कि इट वाज नॉट ओनली द यूनिफॉर्मिटी which was characteristic of the early medieval and late medieval India, but it was also the localism and the intermingling between the local traditions and the you can say the older traditions which
came to represent the picture of the society of those days, right? कुछ इस तरीके से सवाल देखे and you could be asked to examine in this period, तो आपको पता है यहाँ पर क्या लिखना, right? ठीक है। द नेक्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट इज कि राजपूताना वाला जो एरिया था राजस्थान वाला, वहां पर राजपूत थे, वहां पर जो कल्चर डेवलप हुआ दैट वाज अराउंड द, यू कैन से द कंडक्ट or the identity of the Rajputs, how they viewed themselves. In the 19th century, the region Rajput, Rajputana, while several groups who identify themselves as Rajputs, ठीक है, यहाँ पर कुछ important नहीं है. However, the Rajputs are often recognized as contributing to the distinctive culture of Rajasthan. तो राजस्थान का जो कल्चर है, that is identified to Rajputs, and how Rajputs as humans in behavior, in conduct, in action identified them. These cultural traditions are closely linked to the ideals and aspirations of rulers. From the 8th century, हमने राजपूत का डेवलपमेंट डिस्कस किया है कि हाउ आफ्टर द गुर्जर प्रतिहार वेरियस राजपूत किंगडम्स केम इनटू प्रोमिनेंस, एंड उसके बाद even during the Delhi Sultanates and Mughals वो कंटिन्यू होता है in varied forms, right, in different forms. ठीक है, was ruled by various Rajput families. Prithviraj was one of the famous. They fought valiantly, often choosing death on the battlefield rather than facing defeat. तो ये जो था उनका, you can say the ideals, this grew into the type of culture of Rajasthan. Like they preserved the memory, these preserved the memories of the heroes and were expected to inspire others. Ordinary people were also attracted by these stories of strong emotions, loyalty, friendship, love, valor, and anger. Like plus around women के क्या image दिखाई गई है in the Rajput culture. Sometimes women are depicted as following their heroic husbands in both life and death, the practice of sati or the immolation. ठीक है, तो the first example we saw of Kerala जहाँ पर language के around culture बना. The second example we saw of उड़ीसा जहाँ पर रीजनल डेटी के आसपास कल्चर बना. The third example we had seen the Rajputana culture जहाँ पर how the Rajput rulers viewed themselves, ठीक है, उनके ideals and aspirations उनके आसपास कल्चर. Right, so we are done with this. We are done with this, and we are done with the Kerala. The next one is कि कथक के आसपास कैसे कल्चर बना. See, what we know today as Kathak as a dance form that started is derived from Katha, which means a story. The Kathaks were originally a caste of storytellers in the temples of North India who embellished their performances with gestures and songs. It began evolving into a distinct mode of dance, yani ki from people who are reciting Katha, gradually उनमें थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा परफॉर्मेंसेस जेस्चर्स आने लगे, एंड ग्रेजुअली इट इवॉल्व्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ डांस in the 15th and 16th centuries with the spread of Bhakti movement. So Bhakti movement and development of Kathak as a dance form are related to one another. True or false? It's true. Right? The legends of Radha Krishna were enacted in folk plays called Ras Leela, which combined folk dances with basic gestures. Basically यहाँ पर बात क्या हो रही है कि the tradition of Katha or storytelling gradually evolved into Kathak as a dance form, and around that dance form of Kathak, a culture developed. Right? Under the Mughal emperors and the nobles, Kathak was performed in the court, acquired its present features, and developed into a form of dance with a distinctive style. Subsequently, it developed into two traditions or gharanas, one in the Rajasthan and another in Lucknow. Under the patronage of Wajid Ali Shah, the last Nawab of Awadh, it grew into a major art form and therefore it spread into these areas. तो बोला क्या जा रहा है, कथा a form of storytelling, ठीक है, वहां से कथक as a dance form develop हुआ, ठीक है, it got patronage under the Mughals and therefore it developed into distinct cultures, specifically under two gharanas, one is the Rajasthan and another is the Lucknow.
and therefore वो other areas must spread you. And when you talk about gharana, you can that here you can identify a sort of regional tradition, ठीक है, which has also a spatial domain, ठीक है, and you can see कि कैसे ये एक कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. दिस हैज रैपिड फुटवर्क, इलैबोरेट कॉस्ट्यूम, ये जब आप क्लासिकल डांसेस अपनी कल्चर में प्रिपेयर करोगे वहां पर आपको प्रिपेयर भी करना. Kathak was viewed with disfavor by most British administrators. However, it survived and continued to be performed. It is one of the six classical dance forms. Okay? Classical dances हमारे कौन से हैं, folk dances हमारे कौन से हैं, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कल्चर जो आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन में करना है, राइट. यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन फोक एंड क्लासिक डज नॉट मीन कि भी फोक इज इंफीरियर टू क्लासिक, इट जस्ट मीन्स दैट द क्लासिकल डांस को उसको स्टेटस दिया गया है, राइट. Plus, these are the other forms of classical. Right, next. So, firstly, we talked about language and culture. Secondly, we talked about religion and culture, the Jagannath deity. Thirdly, we talked about Rajput ka culture, right? Fourthly, we talked about the Kathak and the culture. The next we are talking about is कि कैसे paintings के आसपास एक culture बने. Right, another tradition of miniature paintings. Miniatures are small size painting. The earliest miniatures were done on palm leaves or wood. Some of the most beautiful ones were found in Western India, illustrated giant text, like Abraham's type of painting. The Akbar, Jahangir, and Shah Jahan patronized skilled trainers who produced manuscripts and miniature paintings containing court scenes, battle hunting, social life. They were often exchanged at gift. ठीक है, and were viewed only by exclusive few. तो यहाँ पर you can see कि miniature as a culture या फिर एक important part of culture develop हुआ. Next, कैसे ये particular region पे कैसे miniature paintings के आसपास एक रीजन का कल्चर देखा गया, उसके बारे में नेक्स्ट बात की जा रही है कि जैसे मुगल्स डिक्लाइन हुए एंड रीजनल स्टेट्स इमर्ज हुए एंड द पेट्रनेज गिवन बाय मुगल्स to the paintings declined, especially during Aurangzeb and after Aurangzeb. So the painters from there they migrated to other regions, and two major schools of painting developed हुए, the Rajasthani and the Himachali one, right? And उसमें बात की जा रही है कि कैसे around painting a particular form of culture developed. With the decline of Mughal Empire, many painters moved out of the courts of the many painters moved out to the courts of the emerging regional states. ये आगे भी देखेंगे हम कौन से हैं, ठीक है. As a result, Mughal artistic tastes influenced the regional courts of Deccan and Rajput courts, retained and developed there. वहां से भी कुछ लिए तो जो मुस्लिम इस मुगल रूल से उन्होंने या फिर मुगल कल्चर से उन्होंने सीखा था, प्लस जो उस एरिया के लोकल फ्लेवर्स थे उनको भी उन्होंने इम्बाइब किया, एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कल्चर अराउंड पेंटिंग वहां पर डेवलप हो. Portraits came to be painted following the Mughal Empire. Besides, themes from mythology and poetry were depicted at centers like Mewar, Jodhpur, Bundi, Kota, and Kashmir. Now, be very clear about this, क्योंकि रीजनल पेंटिंग्स आपकी मेंशनड है 7th की एनसीईआरटी में, यूपीएससी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए रेफरेंस सोर्स से आपको इसको पढ़ना बहुत जरूरी है. तो एक राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ जहां पर ये बात के बानी थानी के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा था, ठीक है. अनदर रीजन इज द हिमालयन फुटहिल्स इन हिमाचल प्रदेश. This region developed a bold and intense style of miniature painting called Basholi. तो बशोली क्या है आपको पता होना चाहिए. The most popular text to be painting here was भानुदत्त रास मंजरी. तो रास मंजरी किसका है, भानुदत्त का, उसको पेंट किया गया. Nadir Shah's invasion and the conquest of Delhi in 1739 resulted in the migration of Mughal artists to the hills to escape the uncertainties, and there they found ready patrons and resulted in the formation of Kangra School of Painting. So basically they are saying कि one is declining patronage, then invasion हुआ, उस कारण से जो painters migrate हुए, उस कारण से cultures develop, right?
developed a style which bred a new spirit into miniature painting. The source was मतलब इंस्पिरेशन किससे लगी, वैष्णवाइट ट्रेडिशन से सॉफ्ट कलर्स का यूज किया गया, लिरिकल ट्रीटमेंट, दीज वर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ कांगड़ा पेंटिंग। तो ये आपको वैसे भी रीजनल पेंटिंग्स तैयार करनी पड़ती है व्हेन यू आर रीडिंग कल्चर। राजपूत पेंटिंग ऑफ राजपूत मिनिएचर्स ऑफ कोटा, ठीक है, वहां पर महाराणा राम सिंह टू प्लेइंग होली है याद रखना, ठीक है। हाउएवर ये जो बातें की जा रही है कि दीज आर अबाउट द पेंटर्स, यहाँ पर ये बात करें कि हाउएवर ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन आल्सो पेंटेड, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि वो सरवाइव किया होगा, अनलाइक द मिनिएचर्स दैट वर केयरफुली प्रिजर्व। ठीक है, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट लैंग्वेज, वी हैव टॉक्ड अबाउट रिलीजन, वी हैव टॉक्ड अबाउट द aspirations of Rajasthan, the Rajput rulers, how they impacted. We've talked about Kathak and its impact on the culture. Next, we talked about the paintings and its impact on culture. The next last example they've given is Bengal. Bengal में तीन चीजों का example दिया हुआ है। One is कैसे बंगाल की एक रीजनल लैंग्वेज डेवलप हुई, ठीक है। सेकंड इज पीर सिस्टम कैसे उधर डेवलप हुआ। द थर्ड इज टेम्पल कैसे वहां पर डेवलप हुए, एंड द फोर्थ वन इज कैसे फूड वहां का डेवलप हुआ, ठीक है। तो इनको इन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए। वेल बंगाली इज now recognized as a language derived from Sanskrit. Early Sanskrit texts suggest that the people of Bengal did not speak Sanskritic languages. How did the new language emerge? तो ये नीचे इन्होंने कहानी बताई हुई। देखो, बंगाल का हमेशा आई टोल्ड यू कि भाई वो थोड़ा दूर था, तो वहां पर डायरेक्टली जो सेंटर में चल रहा है वो कल्चर वहां पर लाना इजी नहीं, ठीक है। तो उस कारण से समटाइम्स यू वुड हैव कंट्रोल ओवर दैट रीजन, समटाइम्स यू वुड नॉट, ठीक है। तो इस कारण से इट वुड आल्सो हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल कल्चर प्लस इट वुड आल्सो डेवलप इट्स ओन कल्चर, ठीक है। ड्यूरिंग द फोर्थ एंड द थर्ड सेंचुरीज बीसीई यानी कि बीसी में commercial ties developed between Bengal and Magad rule के अंदर glowing influence of Sanskrit was seen there. Then during the Gupta time, political control over North Bengal and Brahmins began to settle in that area. Thus the linguistic and cultural influence became stronger. यानी कि आप देख रहे हो कि ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, सांस्कृतिक इन्फ्लुएंस देखने को उधर बढ़ रही होगी, राइट। देन 7th सेंचुरी में युआन सिंह उधर विजिट करता है, ऑब्जर्व दैट लैंग्वेजेस रिलेटेड टू संस्कृत वर यूज्ड इन बंगाल, ठीक है। पालास के टाइम पर आई टोल्ड यू कि पालास रूल्ड इन बंगाल, देन सेनास रूल्ड इन बंगाल। पालास के टाइम पर बंगाल बंगाल बिकेम द सेंटर ऑफ रीजनल किंगडम अंडर द पालास, ठीक है। तो पालास की जो सांस्कृतिक लैंग्वेज थी उसको प्रोमिनेंस मिला होगा, ठीक है, या फिर पालास की जो रीजनल लैंग्वेज थी रिलेटेड टू बुद्धिज्म उसे प्रोमिनेंस मिला होगा, ठीक है। देन बिटवीन 14th एंड 16th centuries बंगाल वाज रूल्ड बाय सुल्तान्स हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स इन दिल्ली। आई टोल्ड यू बंगाल कुछ टाइम के लिए कब्जे में आएगा फिर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कब्जे में आएगा फिर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अकबर वाज द रूलर जिसके टाइम पर फाइनली इट बिकेम अ सूबा अंडर द मुगल एम्पायर। इन 1586 when Akbar conquered Bengal, it formed the nucleus of the Bengal Suba. While Persian was the language of administration, Bengali developed as a regional language. So these interactions were happening in currency. Earlier Sanskrit, now Persian and Bengali, they also developed. Right. So although Bengali is derived from Sanskrit, it passed through several stages of evolution. Also, a wide range of non-Sanskritic words derived from a variety of sources, including tribal languages, Persian, European languages, have become a part of modern Bengali. Right? So, Bengali has seen a lot many languages contributing towards its evolution. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बताई गई। Early Bengali literature may be divided into two categories, one indebted to Sanskrit, another independent of it. The first one includes the translations of the Sanskrit epics, the Mangal Kavyas, the Bhakti literature, and the biographies of Chaitanya Dev. ये समझ आए आपको ना आए ये रटना है for prelims, right? The second includes Nath literature. This is the local
or the regional Bengali language, ठीक है, which is not dependent on Sanskrit, right? The second includes the Nath literature, such as the songs of Mainamati and Gopi Chandra, stories concerning the worship of Dharma Thakur, a regional deity, and the fairy and the folk tales. यहाँ पर याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि नाथ लिटरेचर, मैनामती, गोपी चंद्र, धर्मा ठाकुर, ऑल दीज आर रिलेटेड टू बंगाल, ठीक है। धर्मा ठाकुर इज अ पॉपुलर रीजनल deity। तो हमने बात कर ली बंगाल में रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ बंगाल, ठीक है। द फर्स्ट कैटेगरी संस्कृत के साथ जो एसोसिएटेड थी आर इजियर टू डेट एज सेवरल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन फाउंड, व्हिच इज नॉट द केस विद द सेकंड कैटेगरी, राइट। Second category cannot be precisely dated. They were particularly popular in eastern Bengal, where the influence of Brahmanas was but relatively weak. So obviously, वेस्ट बंगाल साइड पे आपको सांस्कृतिक इन्फ्लुएंस, द ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा देखने को मिलेगा, इस कारण से वहां पर यू विल फाइंड सांस्कृतिक इन्फ्लुएंस इन द बंगाली लैंग्वेज मोर देन व्हाट यू वुड फाइंड इन द ईस्ट, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट कनेक्शन बिटवीन the first example we have seen in the form of language. The next example they are giving off is the cult of peers and the temples, how it developed in Bengal, right? And how the culture of peers and temples it developed in Bengal. Basically, यहाँ पर बात की जा रही है कि बंगाल में थोड़ी सी उथल पुथल एंड क्योस मचा हुआ था, एंड उस क्योस के कारण पीपल वर सीकिंग सम सॉर्ट ऑफ पीस, एंड उस पीस के दौरान सम पीपल केम हु टोल्ड देम कि भाई हम लोग आपको पीस देंगे, ठीक है, वी वुड एक्ट एज योर सेवियर्स, एंड दे बिकेम द पीस, ठीक है। तो ये कहानी इसमें एक्सप्लेन की गई। From the 16th century, people began to migrate from the less fertile western region to the more fertile southeastern Bengal. They cleared forests and brought the land under ice cultivation. Gradually, local communities merged with the new community. This coincided with the establishment of Mughal control over Bengal and capital at Dhaka. They also set up mosques. ठीक है, तो आप देख रहे हैं इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही है, लोग मूव कर रहे हैं, नया कंट्रोल आ रहा है, तो इस कारण से क्या हुआ कि थोड़ी सी क्योस मची हुई। The early settlers sought some order and assurance in the unstable condition. These were provided by community leaders who also functioned as teachers and adjudicators and ascribed themselves with supernatural power. People called them and respected them as peers, ठीक है, a spiritual guide। तो यहाँ से पीर कल्चर वहां पर डेवलप हुआ। This term included saints or Sufis and other religious personalities, daring colonizers, deified soldiers, Hindu and Buddhist deities, and even animistic spirits. The cult of peers became very popular and their shrines can be found everywhere. So, how the cult of peer has developed due to the emerging socio-economic and the political conditions, ये आपके लिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, ठीक है। देन सिमिलर एग्जाम्पल इज कि बंगाल में टेम्पल बिल्डिंग कैसे शुरू। बंगाल ऑल्सो विटनेस्ड अ टेम्पल बिल्डिंग spree in the late 15th century, ठीक है। they were used to demonstrate their power। बेसिकली बताया क्या जा रहा है कि एज द इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन हैपेंड इन बंगाल, ठीक है, तो उस कारण से क्या हुआ, कुछ रीजनल जो डेटीज थे जिनको पहले घरों में पूजा जाता था, उनको बिकॉज नाउ दे कुड बी वर्शिप्ड इन टेम्पल्स, तो इस कारण से टेम्पल कल्चर एंड दैट टू इन डिफरेंशिएटिंग वेज बंगाल में स्टार्ट हुआ, ठीक है, were built with the support of several low social groups. The coming of the European trading communities presented new economic opportunities. As their social and economic position improved, they proclaimed their status through the construction of temples. आज भी तो होता है ना कि भाई हाँ मैं तो ज्यादा कमाने लग गया हूँ, अब मैं भगवान की पूजा ज्यादा करूंगा, मैं भगवान का एक घर में मंदिर बना दूंगा। या फिर अगर आप बहुत बड़े हो कोई, तो आप कहोगे इधर मैं मंदिर बनवाऊंगा, ठीक है, या फिर इधर मैं कोई भी लेट से मॉस्क बनवाऊंगा, चर्च बनवाऊंगा, इस टाइप का मतलब these are ways by which you are trying to portray कि you have gained respect and social status in the society, and this is a way of you depicting your
increased social status. ठीक है, when local deities once worshipped in inner huts, ठीक है, gained the recognition of the Brahmanas, images began to be housed in temples. The temples began to copy the double roofed and the four roof structure. This led to the evolution of typical Bengali style of टेम्पल आर्किटेक्चर, क्योंकि बंगाल में हट्स वगैरह थी, ठीक है, डबल रूफ, फोर रूफ, ठीक है, तो उसी टाइप का टेम्पल आर्किटेक्चर बंगाल में डेवलप हुआ। मोर कॉम्प्लेक्स फोर रूफ स्ट्रक्चर, फोर ट्रायंगुलर रूफ्स कन्वर्ज बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये सब इन्होंने बातें की। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इन बंगाल हाउ the Bengali language developed, how the peer culture developed, and how the temple culture developed. Right. Next, they're talking about is कि फिश एज अ फूड, ये सब जो साइड में ये दिए हुए हैं इनको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, जस्ट हैव एन आइडिया कि इसमें क्या क्या फैक्ट्स डिस्कस किए। नेक्स्ट दे टॉकिंग अबाउट कि ड्यू टू ज्योग्राफिकल कंडीशंस बंगाल में फिश एज अ फूड वाज इंपॉर्टेंट एंड फिश बिकेम ऑफ द पार्ट, a critical part of the Bengali culture. ठीक है, traditional food items are generally based on the locally available items. Bengal is riverine plain and वहाँ पर rice fish की cultivation बहुत ज़्यादा है, ठीक है। Fish has always been of important occupation and Bengali literature contains several references to fish. Then on the walls or temples and viharas you can see fish hunting scenes being depicted. Brahmanas, देखो usually Brahmins they are not allowed to eat non-vegetarian, but considering the importance of fish in the culture of Bengal, वहाँ के Brahmins को exempt किया गया था इस चीज से। Brahmanas were not allowed to eat non-vegetarian food, but the popularity of fish in the local diet made the Brahminical authorities relax this prohibition for Bengal. The Dharma Puran, ठीक है, Sanskrit text from Bengal permitted the local Brahmins to eat variety. So you can see how geographical conditions influence the culture of a religion and how that culture influences कि how religion या फिर the worship of a particular religion या फिर reverence of a particular religion will be impacted. ठीक है, तो this was the topic, this was the chapter. Directly prelims में इससे कुछ है ना है, that is we do not know, ठीक है, but important to understand कि भी लोकल कल्चर्स वो कैसे डेवलप होते हैं एंड कैसे उनका ग्रोथ होता है, एंड हेयर वेरियस एग्जांपल्स हैव बीन प्रेजेंटेड। जो प्रीलिम्स वर्दी मटेरियल इसमें है वो पढ़ लेना, इसको अंडरस्टैंड कर लेना चैप्टर को, प्लस मेंस में इन 2 लाइंस इन 3 लाइंस अगर आप कुछ लिख सकते हो, वो लिखने का आपको मटेरियल पता है, या फिर मेंस में डायरेक्ट यूपीएससी ऐसा सवाल पूछ ले तो अब आपको पता है लिखना क्या है, राइट, एज आई हैव टोल्ड यू with the one of the examples of the question, right? So this was the 7th chapter. The next chapter, which we are going to discuss, sorry, my throat is not so well right now. ठीक है, तो जो नेक्स्ट चैप्टर which we will be discussing is कि जब मुगल एम्पायर वीक हो रहा है, the central authority is getting weakened, तो कैसे वहां पर अलग अलग रीजनल पॉलिटिकल एंटिटीज एंड पॉलिटिकल फॉर्मेशंस बन रही हैं, ठीक है, तो इसका एग्जांपल दिया गया। फर्स्टली दे हैव टॉक्ड अबाउट कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि इनहेरेंट वीकनेसेस क्या रही मुगल एम्पायर में कि जिस वजह से ये हो रहा है। बेसिकली दिस चैप्टर इज योर ट्रांजिशन फ्रॉम
द मिडिवल इंडिया टू द मॉडर्न इंडिया, ये सब आप मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ोगे, ठीक है। वेदर यू आर रेफरिंग टू स्पेक्ट्रम और एनी अदर बुक, तो उसमें भी आप पढ़ते हो द रीजनल स्टेट्स विच आर अ पार्ट ऑफ विच आर अ पार्ट व्हेन द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाज हैपनिंग, ठीक है। प्लस इस पे यूपीएससी ने एक सवाल भी पूछा हुआ है, एंड यू कैन नाउ कंसिडर कि एनसीईआरटीज कितनी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटीज में ये थीम डिस्कस थी, इस कारण से इस सवाल यूपीएससी में अपीयर होता है, यानी कि एनसीईआरटी में जो थीम डिस्कस्ड है, हो सकता है उस थीम के रिगार्डिंग एनसीईआरटी में मटेरियल कम है, बट एनसीईआरटी में वो थीम है, दैट मीन्स कि फर्स्टली एनसीईआरटी जितना मटेरियल आपके पास होना चाहिए, एंड सेकेंडली आपके पास फर्दर ऑन आपकी रेफरेंस बुक में जो मटेरियल वो आपके पास होना चाहिए, राइट। तो द फर्स्ट थिंग इज, इसमें उन्होंने पहले बताया हुआ कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि वेरियस पॉलिटिकल फॉर्मेशंस इस्टेब्लिश गॉट इस्टेब्लिश। सेकेंडली वो तीन पार्ट्स में इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है। एक्चुअली ये जो रैशनलाइज होकर एनसीईआरटीज आई है, इसमें वो थ्री पार्ट डिस्टिंक्शन हटा दिया गया जस्ट फॉर रैशनलाइजेशन, बट पुरानी एनसीईआरटी में वो थ्री पार्ट डिवीजन था, ठीक है, टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से किस किस टाइप के स्टेट्स इमर्ज हो, right? So three types of states emerged, independent states emerged when the Mughal influence was getting weakened. Three types कौन से थे? Firstly was the Mughal provinces, ठीक है, वो मुगल प्रोविंसेस जिनको एज गवर्नर्स, एज मनसबदार सेंट्रल मुगल अथॉरिटी ने भेजा था, एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड टू assert their control although they were bearing formal allegiance to the Mughal Empire, but gradually उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट वन वाज दिस टाइप, इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, ठीक है। द नेक्स्ट वन वाज व्हिच वर डायरेक्टली नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स, बट they had some sort of relations, and Mughals had allowed them considerable autonomy on the land they are ruling, ठीक है। So that is the prominent example given of is Rajputs. The third one is जो नए type of states emerge हुए which presented a challenge to the Mughal authority. The important ones discussed here are Marathas, the Sikhs, ठीक है, एंड द जाट्स। तो ये तीन टाइप ऑफ स्टेट्स जो थे ये एमर्ज हो रहे थे व्हेन द मुगल पावर वाज डिक्लाइनिंग, या फिर यू कैन से दीज वर द रीजन, वन ऑफ द रीजंस कि मुगल पावर जिन्होंने मुगल पावर का डिक्लाइन को एक्सेलरेट किया, एंड ये वो भी टाइम है जब फाइनली यूरोपियन पावर्स बाहर से आ रही है, एंड उन्होंने देखा कि मुगल पावर इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग, regional powers that they are not competent enough to take the, you can say that, टेक कंट्रोल, ठीक है, या फिर हम डिवाइड एंड रूल खेल के अपना पावर ला सकते हैं, हम यहाँ से एंटर कर जाते हैं मॉडर्न इंडिया, ठीक है। यहाँ पर दे आर टॉकिंग अबाउट कि द टू मैप्स, ठीक है, ये देखिए, सिक्स जाट्स, ठीक है, गुजरात, मालवा, बंगाल, मराठास, हैदराबाद। तो ये बता रहे हैं कि एरो शो कि भाई ये वाली रीजन्स कहाँ कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस मैप एंड द अप्रॉक्सीमेट लोकेशन, ठीक है। द नेक्स्ट दे टॉकिंग अबाउट कि भाई ये वाला वो मैप है जब ब्रिटिश का कंट्रोल एस्टैब्लिश होना शुरू हो गया इस एरिया में, ठीक है, एंड दीज वर द अदर एंटिटीज व्हिच वर प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, सो इट इज रफली 1750 का ये समय, राइट। यूपीएससी ने सवाल क्या पूछा था कि द spectre of the mid 18th century was characterized with a fragmented polity reasons। फ्रेगमेंटेड पॉलिटी मतलब कि अलग अलग उस टाइम पर रीजनल एंटिटीज रूल कर रही थी, तो उसका रीजन आप बताइए, ठीक है। तो ये चैप्टर भी कोई ढंग से देख लेता, ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत आसान था, प्लस ये आपकी मॉडर्न इंडिया में बहुत ही आसान सी चीज, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग रीजन्स बताए हुए हैं, ठीक है। Proximate idea of these locations, what are the locations close to and the regions ruling over these locations, ठीक है, इनको you have to see it once, ठीक है। नॉर्दर्न सरकार इज द उड़ीसा वाला एरिया, ठीक है, हैदराबाद। तो यहाँ पर बाय 1765 ब्रिटिश सक्सेसफुली ग्रैब सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, हमें पता है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, जिससे कि ब्रिटिश ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के ऊपर अच्छा खासा कब्जा अपना जमा लिया, ठीक है।
What these maps tell us is the political conditions in the 18th century in India has changed quite dramatically. ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी ने इस चैप्टर से उठाया, एंड दैट टू इन मेंस. ठीक है, एंड इसके हमें सब्सटैंशियल एंड अलॉट मेनी नंबर ऑफ एग्जांपल्स मिले हैं कि यूपीएससी एनसीईआरटी को बहुत सीरियसली लेता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी. दिस ट्रेंड हैज बीन a truth for the past 5 to 6 years. Whether it will be a truth for 2024, ठीक है, we do not know, but most likely it will be. ठीक है ना, and the best way to prepare that is कि भाई इस चीज के लिए आप तैयार होकर जाएं कि यूपीएससी ये पूछ सकते. ठीक है ना, एंड ये कोई ऐसे नहीं है कि अलग से आप कोई किताब पढ़ रहे हैं. ठीक है, दीज आर द मोस्ट बेसिक, द फाउंडेशनल बुक्स जो आपको पढ़नी है. In these chapters, we will read about the emergence of the new political groups during the first half of the 18th century, roughly when Aurangzeb died, until the Third Battle of. ठीक है, तो ये क्यों है? यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि भाई मुगल एम्पायर में ऐसी क्या इनहेरेंट वीकनेसेस थी कि उसका सेंट्रल रोल या उसकी सेंट्रल अथॉरिटी कम होती गई, एंड द रीजनल स्टेट्स दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गेन कंट्रोल. Mughal Empire reached heights of success and started facing a variety of crises towards the closing years of the 17th century. Basically, वही है कि later part of the Aurangzeb. ठीक, there were a number of factors. Emperor Aurangzeb had depleted the military and the financial resources. Deccan में जाना one of the major, you can say, fault line या फिर faults थे मुगल्स के. मराठास का टूवर्ड्स नॉर्थ में आना वन ऑफ द मेजर फॉल्ट था मराठास. हुआ क्या, उनके साउथ में जाने से, इनके नॉर्थ में जाने से वन डेक्कन स्टेट्स जो बफर थे वो खत्म हो गए. मराठास की भी मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट पड़ा, एंड मुगल्स के भी उस पे इम्पैक्ट पड़ा, एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी, एंड दिस प्रोवाइडेड अ सिचुएशन जहां पर मराठास एंड मुगल्स डायरेक्ट क्लैश कर सकते हैं. एंड इसको ब्रिटिशर्स ने बड़े अच्छे से भुनाया इस अपॉर्चुनिटी को बाय यूजिंग डिवाइड एंड रूल. प्लस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ऑलरेडी सब सफाया हो गए थे. ठीक है, under his successors the efficiency of the imperial administration broke down. ठीक है, जागीरदारी क्राइसिस आया, मनसबदारी क्राइसिस आया, क्योंकि अब जागीरदार बहुत ज्यादा हो गए थे, उनको लैंड वगैरह कम मिल रहा था. ठीक है, तो इस कारण से दे ट्राइड टू assert as much control as possible. It became increasingly difficult for the later Mughal emperors to keep a check on the powerful mansabdars. यहाँ पर वही बात हो रही है जो रीजनल स्टेट्स बन रहे हैं. ठीक है, अवध, बंगाल, हैदराबाद. ठीक है, ये मनसबदार सिर्फ पावरफुल मनसबदार, और ये क्या होगा ना, ये उस टाइप के रूलर्स हैं कि ये दिल्ली में बैठ के, यानी कि मागो मुगल कोर्ट में बैठे हैं, वहां पर बैठ के तो कहेंगे साहब हम आप ही के अंडर हैं. ठीक है, ये तो अफवाह फैलाई जा रही है कि हम अलग होने की बात करें, बट द मोमेंट दे विल लैंड इन बंगाल, अवध और हैदराबाद, ठीक है, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट तरीके से रूल करने लग जाएंगे. ठीक है, तो इट बिकेम डिफिकल्ट टू कीप अ चेक ऑन द पावरफुल mansabdars. Mughals appointed as governors subedars often controlled the offices ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. रेवेन्यू मतलब दीवानी, मिलिट्री मतलब फौजदारी. ये उन्हीं की बात हो रही है. योर निजामुल मुल्क ऑफ हैदराबाद, योर सादत खान ऑफ अवध. ठीक है, योर खुर्शीद कुली खान एंड लेटर अली वर्दी खान ऑफ बंगाल. This gave them extraordinary political and economic military powers over vast region. As the governors consolidated their control, the periodic remission of the revenue to the capital, यानी कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन, तो वहां पर कम पैसा भेजने लगे. साइड बाय साइड, अब क्योंकि औरंगजेब ने बहुत परेशान किया लोगों को, ठीक है, अलग अलग स्मॉल किंगडम्स को, पीजेंट्स को भी परेशान किया, तो वहां से भी अब रिवोल्ट सामने आपको देखने को मिलेंगे. Peasants and zamindari rebellions in northern and western India added to these problems. There were mounting taxes, attempts by powerful chieftains to consolidate their own positions. One of the examples you can see is जाट रिवोल्ट, सतनामी रिवोल्ट. ठीक है, राजपूत में भी ऐसा हुआ. ठीक है, स्पेशली मेवाड़ में. बट दीज ग्रुप्स नाउ एबल टू सीज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द रीजन टू कंसोलिडेट देयर पोजीशंस, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी धीरे धीरे कमजोर हो रही है. ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ औरंगजेब,
नीचे से रीजनल पावर्स भी उन्हें कमजोर कर रही है, बाहर से यूरोपियन पावर्स भी उन्हें कमजोर कर रही है, ठीक है। एंड दिस इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द local regional peasants and zamindari rebellions to actually influence the things in a major way, right? The Mughal emperors after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of political and economic authority into the hands of provincial governors, local chieftains and others. तो यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिए हुए कि कैसे धीरे धीरे कंट्रोल शिफ्ट हो गया, right? In the midst of the economic and political crisis, the rulers of Iran, Nadir Shah, sacked and plundered Delhi. नादिर शाह दिल्ली में आया था 1739 में, हमें पता है, ठीक है। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आता है 1761 में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, ठीक है, खत्म। धीरे धीरे यूरोपियंस को पता लगता है कि भाई हम ही आने, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स को, लाइक, ठीक है। they took away the immense amounts of wealth, plunder. This invasion was followed by Afghan rulers के invasions, Ahmad Shah Abdali who invaded North India 5 times, and finally third battle of Panipat happens in 1761। तो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ कि कितना ज्यादा लूट हुआ था, राइट? यू कैन सी आज के टाइम में हमें लगता है कि यार इतना बड़ा एम्पायर के छोटी मोटी लूट से इन्हें क्या ही फर्क पड़ता होगा, बट सी उस टाइम पर ये क्या लेकर गए, एक लूट 60 लाख रुपीज, 1,000 gold coins, some 1,000 gold coins, nearly 1 crore worth of goldware, 50 crore worth of jewels, एंड अबव इंक्लूड द पीकॉक थ्रोन, ठीक है। तो इतना लेब लूट के ले जाते हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा ही आएगा, कोई भी एम्पायर। फर्दर द एम्पायर वाज वीकेंड बाय द कंपटीशन। अब नोबिलिटी में अलग कंपटीशन चल रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा राजा तो कमजोर हो रहा है, ठीक है, बाहर वाले भी इनको थ्रेट दे रहे हैं, तो क्यों ना हम अपना ही अलग चला लें कुछ, ठीक है, क्यों ना हम ही राजा बन जाए। तो देयर वाज अ कंपटीशन अमंगस्ट द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोबल्स एज वेल। They were divided into two major groups or factions, the Iranis and the Turanis. Iranis Persian, Turanis मतलब Turkish descendant है। For a long time, the later Mughal emperors were puppets in the hands of either वन ऑफ दीज टू पावरफुल ग्रुप्स। मतलब नोबिलिटी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो रहा था मुगल्स के ऊपर, एंड इसका इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। The worst possible humiliation came when two Mughal emperors, Farooq Siyar and Alangir, were assassinated, and two others, Ahmad Shah and Shah Alam II, were blinded by the Mughals। तो अब देखिए एक राजा को उनकी जो नोबिलिटी है, यू कैन सी द ब्यूरोक्रेसी ऑफ दैट टाइम, ठीक है, वो कैसे कंट्रोल कर रही थी। एंड ऑब्वियसली जब ये सब होगा तो कैसे कोई एम्पायर बच पाएगा। With the decline in the authority of the Mughal emperors, the governors of large provinces, Subedars and great Zamindar, consolidated their authority in Awadh, Bengal and Hyderabad। अवध में कौन? सादत खान। बंगाल में मुर्शीद कुली खान। यहाँ पर निजाम लोग, ठीक है। इसकी डिटेल्स पहले एनसीईआरटी में थी, अब नहीं है, एलिमिनेट कर दी गई है, बट नेवरदलेस इसकी डिटेल्स आप जो पोस्ट मतलब जो मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो उसमें जो रीजनल स्टेट्स पढ़ते हो उसमें आपको मिलेंगे। So this was the first category, जहां पर the first category was the old Mughal provinces, जिनमें वहां पर as governors उन्हें भेजा गया था, they asserted their autonomy and independence। The second one was the Rajputs, ठीक है, जिनको considerable independence and autonomy दी गई थी, ठीक है, to rule। So they are dealing here with the second category, ठीक है, जिसकी हमने बात। मेनी राजपूत किंग्स, ध्यान से पढ़ना, ये दो पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी फैक्चुअल डिटेल्स है, ठीक है। तो इट वुड इंपॉर्टेंट यू रीड इट कंसेप्चुअली एज वेल एज कीपिंग एन आई ऑन द फैक्चुअल डिटेल्स। मेनी राजपूत किंग्स, particularly those belonging to अम्बेर, अम्बेर मतलब वो जोधपुर वाला एरिया, एंड जोधपुर, सॉरी जयपुर वाला एरिया, दिस इज द जयपुर वाला एरिया एंड जोधपुर, had served under the Mughals with distinction। In exchange, they were permitted to enjoy considerable autonomy in their own areas and their Vatan Jagirs। In the 18th century, these rulers now attempted to extend their control। Obviously, अभी आपको पहले बोल दिया कि भाई आपका ये एरिया, आप खुश हो, लेकिन आपको लग रहा है कि यार जो जिसने मुझे ये सब अथॉरिटी दी है वो खुद ही नहीं उसकी अब कोई सुन रहा, ठीक है, तो मैं भी तो अपना एरिया बढ़ा सकता हूँ, जब सारे बढ़ा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बढ़ा सकता। Ajit Singh, the ruler of Jodhpur, also involved in the factional politics at Mughal court। तो यहाँ से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ से एक लेसन भी है कि
जनरल लाइफ के एक लेसन है कि समवन वीकर देन यू, उसको अपनी जिंदगी में कभी ज्यादा कंट्रोल करने मत दो, ठीक है। दैट पर्सन माइट बी सेंसिंग कि यू आर गेटिंग वीक, ठीक है, एंड इन दैट अपॉर्चुनिटी ही माइट बी साउंडिंग एज योर फ्रेंड, बट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू वीक यू, राइट। These influential Rajput families claimed the सूबेदारी of the rich provinces। क्या लिख रहे हैं ये वाली families? They claimed the सूबेदारी, यानी कि यहाँ पर हम कंट्रोल करेंगे of गुजरात एंड मालवा, and in a way they are trying to extend their control। राजा अजीत सिंह held the governorship of गुजरात। ये सब फैक्चुअल डिटेल्स हैं, एक बार बस इन्हें देख लेना, याद रहे ना रहे। एंड सवाई राजा जयसिंह ऑफ अम्बेर, जो मतलब जयपुर वाला जो रीजनल रीजन है, ठीक है, was the governor of Malwa। These offices were renewed by Jahandar Shah। They also tried to extend their territories by seizing other bordering territory, ठीक है। For example, Nagaur was included in Jodhpur, whereas अम्बेर सीज बूंदी, ये आसपास के डिस्ट्रिक्ट है। जोधपुर के पास नागौर है, जयपुर के पास बूंदी है, तो इन्होंने ये अपने कंट्रोल में ले आए। सवाई राजा जयसिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर एंड वाज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सवाई राजा जयसिंह इज एन इंपॉर्टेंट रूलर, पढ़ना चाहिए आपको, पढ़ना है मतलब इनके बारे में। इनके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इस्टेब्लिश्ड है कि गॉट सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722, ठीक है। मराठा कैंपेन्स इनटू राजस्थान पुट सीवियर प्रेशर ऑन दीज प्रिंसिपैलिटीज एंड चेक देयर पर्सनल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली दे वर ट्राइंग टू एक्सपैंड, बट ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ एक राजपूत ही एक्सपैंड कर रहे हैं, नीचे से उन्हें मराठा टेंशन दे रहे हैं, ठीक है। तो दीज वर सम ऑफ द फैक्चुअल डिटेल्स, कंसेप्ट समझ गए। यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई मोर और लेस सारे कंट्रोल में आ गए थे मुगल्स के, इन टर्म्स ऑफ कि आप बस हमारी बात सुनते रहिए, ठीक है, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप अपना इंडिपेंडेंटली रूल करिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि एक था द स्टेट ऑफ मेवाड़, वो उनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। बट द स्टेट ऑफ मेवाड़ was the only Rajput state which defied the Mughal authority। Rana Pratap ascended the throne of Mewar in 72। A series of envoys were sent to Rana to persuade him to Mughal suzerainty, but he stood in। तो मेवाड़ मतलब ये उदयपुर वाला एरिया, ठीक है, चित्तौड़ उदयपुर वाला एरिया, जो कि जिसने कि मुगल अथॉरिटी को बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं किया था। ही ऑलवेज डिफाइड दैट अथॉरिटी, ठीक है। तो नाउ ये बता रहे हैं कि भाई ये लोग फोर्टिफाइड किलों में रहते थे, ठीक है। Many Rajput chieftains built a number of forts on hilltops which acted as centers of power। They had extensive fortifications which has which had housed urban structures, palaces, सभी कुछ उनके अंदर होता था, राइट। इनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती थी बाहर जाने की, राइट। एंड दिस वाज आल्सो अ वे कि यू वुड succumb your enemy into defeat, ठीक है। सबमिस यू विल फोर्स हिम टू submit to you, ठीक है। Trading centers, water harvesting structures, and other buildings। The Chittorgarh fort contained talabs, kundis, baulis, etc. etc. Right? यहाँ पर बताया हुआ कि राजा जयसिंह he became the governor of Agra for 12 years and of Malwa for 5-6 years। ठीक। सवाई राजा जयसिंह the ruler of Amer constructed 5 astronomical observatories in Delhi, Jaipur, Ujjain, Mathura and Varanasi। दिल्ली जयपुर की हमें पता है, बाकी 3 याद रख लेना, MVU जैसे भी आपको याद रहे। मथुरा वाराणसी 2 इंपॉर्टेंट रिलीजियस, तीनों ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस, राइट। commonly known as jantar mantar। These observatories has various instruments to study heavenly objects। या तो दिल्ली वाली या जयपुर वाली सबने मोर और लेस देखी होगी, राइट। नेक्स्ट इज द थर्ड कैटेगरी। पहली कैटेगरी हमने किसकी बात की थी? द गवर्नर्स, द सूबेदार्स हु वर अपॉइंटेड एज सूबेदार्स इन द मुगल प्रोविंसेस, ठीक है। दैट इज द अवध, द बंगाल एंड द हैदराबाद। तो सेकंड हमने बात की दैट इज ऑफ राजपूत। द थर्ड वन इज जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स एमर्ज हो रहे थे, ठीक है, एंड दे वर चैलेंजिंग द मुगल अथॉरिटी। इनमें एग्जांपल्स है सिख्स के, मराठास के एंड जाट्स की, राइट। तो सिक्स की कहानी हमने कल ही पढ़ी थी कि धीरे धीरे खालसा पंथ गुरु गोबिंद सिंह ने स्टैब्लिश कर लिया था, और उसके बाद बंदा बहादुर के पास कंट्रोल गया, देयर आफ्टर रंजीत सिंह जी के पास कंट्रोल गया, राइट। एंड फर्दर
हम एंटर कर जाते हैं द एंग्लो सिख वॉर्स, जो हम मॉडर्न इंडिया में एंटर कर जाते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिक्स इनटू पॉलिटिकल कम्युनिटी helped in regional state building in the Punjab, की कल बात की थी। Several battles were fought by Guru Gobind Singh against Rajputs and Mughals, ठीक है, both before an institution of Khalsa in 1699। तो ये सारे उस टाइम पर रीजनल एंटिटीज हैं, जैसे ही इन्हें लगेगा कि भाई ये हमारे फेवर में है, ये हमारे अगेंस्ट है, ये उसी के फिर साथ साथ लड़ाई लड़, ठीक है। जैसे मुगल्स ने, सॉरी, सिक्स ने मुगल्स के साथ भी लड़ाई की, राजपूत के साथ भी लड़ाई की, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ इन 1708 द खालसा रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर बंदा बहादुर लीडरशिप, ठीक है। declared their sovereign rule by striking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh and established their own administration between Satluj and Yamuna। आज के सतलुज और यमुना यानी पंजाब वाले एरिया में इन्होंने अपनी, पंजाब हरियाणा वाले एरिया में इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को स्टैब्लिश किया। बंदा बहादुर was captured and executed in 1716। Under a number of able rulers in the 18th century, the Sikhs organized themselves into bands called Jathas, and later they were called missals। Their combined forces were known as the Grand Army, the Dal Khalsa। ये सब आपको पता है, आपने कभी ना कभी, स्पेशली इफ यू आर स्टूडेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, ये सब आपने सुना ही। फ्रॉम साउथ इंडिया इसको पढ़ लें। The entire body used to meet at Amritsar at the time of Baisakhi and Diwali to take corrective decisions known as resolutions of the Guru Mata। A system called Rakhi was introduced offering protection to cultivate। ठीक, तो ये सब फैक्ट्स हैं, ज्यादा इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। Guru Gobind Singh had inspired Khalsa that their destiny was to rule, राज करेगा खालसा। Their well-knit organization offered a successful resistance to Mughal emperors and then to Ahmad Shah Abdali as well। क्योंकि अहमद शाह ने बाहर से एंटर किया है, वहां पर आपको दिखेगा सबसे पहला जो उनको टारगेट या फिर सबसे पहले रेजिस्टेंस जो फेस करने के मिस रेजिस्टेंस जिससे फेस करने को मिलेगी, दैट वुड बी ऑब्वियसली द सिक्स, राइट। तो इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को भी रेजिस्ट किया, who had seized the rich province of the Punjab and Sarand from the Mughal। The Khalsa declared their sovereign rule by striking their own coin। The Sikh territories extended from Indus to Jamna, but they were divided under different rulers। ये हमें पता भी है कि कैसे सिक्स भी धीरे धीरे फैक्शनलिज्म वहां पर आ जाता है। वन ऑफ देम महाराजा रंजीत सिंह ने फिर इन्हें रीयूनाइट किया एंड एस्टैब्लिश देयर कैपिटल एट लाहौर, एंड फिर एंग्लो सिख वॉर होती है जो कि मॉडर्न इंडिया। मोरलेस ऑफ डेवलपमेंट समझ गए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, प्लस जो कल डिस्कशन डिस्कशन कर रहे थे अबाउट गुरु नानक जी एंड फर्दर ऑन, ठीक है, वहां से एसोसिएटेड है, यहाँ पे एसोसिएटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, उनको दो तीन बार पढ़ लेना, क्योंकि इसमें यूजुअली थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। सेकंड गुरु कौन थे, फिफ्थ गुरु कौन थे, कंपाइलेशंस किसकी किस में किस किस की इंक्लूडेड है, देन उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के बाद कौन आया, बंदा बहादुर कब आया, रंजीत सिंह कब आए, मिसल्स क्या है, कॉन्फेडरेसीज क्या है, सब थोड़ा सा एक बार इसको ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज द मराठा। यहाँ पर मराठास के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दिया हुआ है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 17th century a powerful state started emerging in the Deccan under the leadership of Shivaji, which finally led to the establishment of Maratha state under the guidance of his mother, Dada Konde। Shivaji embarked on a career of conquest at a young age। The occupation of Javli, ये सब facts हैं, बस याद रखना, occupation of Javli made him the indisputed leader of the Mawla Highlands, which paved way for further expansion। His exploits, ये सब ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि ऑक्यूपेशन ऑफ जावली इज रिलेटेड विद मराठास, ठीक है। ये पता ही आपको, ही ऑफन रिजॉर्टेड टू गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट हिज ओपोनेंट्स by introducing an efficient administrative system, important, supported by revenue collection method। चौथ एंड संदेश मुखी हमें पता है। he laid down the foundation of a strong Maratha state, right।
The Marathas were another powerful regional kingdom. You can say the second most powerful regional kingdom after, मतलब the first most powerful regional kingdom and the second most powerful kingdom after Mughals, to arise out of a sustained opposition to Mughal rule. Religious भी काफी ज्यादा था इनके बीच में, right? Shivaji carved out a stable kingdom with the help of powerful warrior families जिनको देशमुख कहा जाता था। आपको पता है महाराष्ट्र में आज भी ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पेस्ट्रोलिस्ट जिनको कुनबीज कहा जाता है। तो कुनबीज कौन है? peasant pastoralists. They provided the backbone to the Maratha army. So peasants are also supported them. Shivaji used these forces to challenge the Mughals in the peninsula. After Shivaji's death, effective power in the Maratha state was wielded by Chitpavan Brahmins, who served Shivaji's successor as जिनको शिवाजी ने सक्सीड किया तो उनको एज पेशवा एज प्रिंसिपल मिनिस्टर्स इन्होंने सक्सीड किया। पूना became the capital of the Maratha kingdom. मराठास के बारे में आप अपना मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ते हैं, राइट? जस्ट Peshwas, they became dominant part of the administration. Under the Peshwas, Marathas developed a very successful military organization. Their success lay in bypassing the fortified areas of the Mughals by raiding cities where supply lines were disturbed. ठीक है, तो ये इनका तरीका था। ये सब फैक्ट्स हैं अबाउट मुगल्स, ठीक है, बस इनको एक बार देखना है आपने और इसमें कुछ समझने लायक है नहीं है। Between this time, the Maratha Empire expanded. Gradually, it chipped away at the authority of the Mughal Empire. Malwa and Gujarat were seized from the Mughals. The Maratha king, recognized as the overlord of the entire Deccan Peninsula, possessed the right to levy Chauth and Sardeshmukhi in the entire region. ठीक है, तो this is how they are expanding. After raiding Delhi, they expanded into Rajasthan and Punjab in the north, into Bengal and Odisha, and into Karnataka, Tamil and Telugu. ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई ये जहां जहां जो रीजन्स के नाम आ रहे हैं सब जगह मराठास ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था, बट इट इज टॉकिंग अबाउट कि इन रीजन्स को भी इन्होंने रेड किया, टारगेट किया, अपना कॉन्क्वेस्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, राइट? तो ऐसा नहीं कि दीज वर फॉर्मली इंक्लूडेड इन द मराठा एम्पायर बट वर मेड टू पे ट्रिब्यूट एज अ वे ऑफ एक्सेप्टिंग मराठा सोवरेनिटी। एक्सपेंशन ब्रॉट इनॉर्मस रिसोर्सेज बट इट केम एट अ प्राइस। प्राइस आपको पता है कि भाई आपने रीजनली तो एक्सपैंड कर लिया, ठीक है, बट आप सब कुछ डिप्लीट कर चुके हो, प्लस आपके अंदर बहुत इनहेरेंट वीकनेसेस थी क्योंकि आपके जो मराठा सरदार्स थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे वुड नॉट पे हीड टू योर एडवाइस या फिर योर वार्निंग्स, योर ऑर्डर, एंड वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेंगे। एंड फाइनली मराठा ड्यू टू दिस फैक्शनलिज्म दे कुड नॉट पोज अ स्ट्रॉन्ग चैलेंज टू, मतलब they could not pose themselves as a strong contender to those who will succeed Mughals. एंड किस्मत खराब मानो या जो मर्जी मानो कि इस टाइम पर फिर यूरोपियंस का एडवेंट हो रहा है एंड ब्रिटिशर्स थ्रू द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल प्लस थ्रू देयर टैक्टफुल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, टैक्टफुल मिलिट्री पॉलिसी, ठीक है, वो इंडिया पर कंट्रोल जमा कर बैठे हैं। These military campaigns made other rulers hostile toward Marathas, जैसी हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स औरंगजेब थी, ठीक है, उस तरीके की मराठास की तरफ भी थी, क्योंकि मराठास भी फिर जहां जाते थे ये किसी का सोचते नहीं थे, ठीक है, इन्हें रेड करना है तो फिर दे यूज टू डू, ठीक है। एज अ रिजल्ट दे वर नॉट इंक्लाइन टू सपोर्ट द मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मराठा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली से हार जाते हैं एंड दिस समवेयर उनकी कहानी खत्म कर देते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ कि अपार्ट फ्रॉम दिस उनका एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, रेवेन्यू डिमांड्स वर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड टेकिंग लोकल कंडीशंस इनटू अकाउंट, एग्रीकल्चर वाज encouraged, ट्रेड रिवाइव्ड,
दिस अलाउड मराठा सरदार, हमें पता है सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोसलेज ऑफ नागपुर, ये सब जो थे, दीज वर द पार्ट्स ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी। तो अलग अलग मराठा सरदार स्टैब्लिश हो गए थे, ठीक है, विच यूज टू प्रोवाइड द मिलिट्री सपोर्ट टू द ओवरऑल मराठा किंगडम, ठीक है। द मेजर वन वाज द पेशवाज एट पुणे। Ujjain expanded under the Holkars. The cities were large and prosperous, functioned as important commercial and cultural centers. New trade routes emerged. तो ये बात कर रहे हैं कि कैसे मराठास के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट डेवलप हुआ। देखो, मराठास थ्रू देयर valor, through their bravery, through their guerrilla warfare, through the able administrators, through the able leaders, उन्होंने बहुत एक्सपैंड किया। लेकिन इनहेरेंट वीकनेसेस इन द मराठा किंगडम, ठीक है, प्लस जो उस टाइम पर यू कैन से बैड लक कि भाई यूरोपियंस आ रहे थे उस टाइम पर, दे कुड नॉट, प्लस अहमद शाह अब्दाली बाहर से आ जाता है, ठीक है। तो व्हाट व्हेन एनीथिंग हैज टू गो रॉन्ग, अब आपको पता नहीं चलेगा वो कहाँ से गलत हो जाए, राइट। तो इस कारण से मराठास की किस्मत खराब थी कि भाई दे कुड नॉट सक्सीड द सेंट्रल rule after Mughals, ठीक है, they could not get the central rule after Mughals, ठीक है। तो ये सब इन्होंने बातें की हुई कि कैसे मराठा के अंदर अच्छी अच्छी चीजें हो रही थी, ठीक है। बाजीराव वन was the son of Peshwa, who was a great Maratha general, expanded Maratha kingdom beyond Vindhya, known for his military campaigns and also campaigns against the Portuguese, ठीक है। So next they are talking about is the Jats. The third one, the first one was Sikhs, the second one was Marathas, and the third one is Jats. ठीक है। जाट्स में दो नेम्स इंपॉर्टेंट है, वन इज चारुमन एंड चूरामन एंड द सेकंड वन इज सूरजमल, ठीक है। तो इन्होंने भरतपुर करके एक रीजनल स्टेट पर कंट्रोल किया, ठीक है। तो भरतपुर इंक्लूड्स द मॉडर्न ईस्टर्न राजस्थान, द सदर्न हरियाणा एंड द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली। तो ये रीजन ऑफ भरतपुर, ठीक है। दे ऑल्सो बिल्ट अ नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड पैलेसेस लाइक द लोहगढ़ फोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बात की हुई है, लाइक द अदर स्टेट्स द जाट्स कंसोलिडेटेड देयर पावर इन द लेट 17th and 18th centuries under the leader Churaman. They acquired control over territories situated to the west of Delhi, यही वाला जो रीजन, ठीक है, बात की हुई है। प्लस इस रीजन को और थोड़ा बड़ा किया सूरजमल ने, ठीक है। began dominating the region between the two cities of Delhi and Agra. For a while, they became the virtual custodians of the city of Agra. ये सब पिंक में mentioned है, ये इसलिए mentioned है, either it can be a fact or it can be that type of statement जो यूपीएससी अगर आपको प्रीलिम्स में दे दे तो आपके लिए शायद पहचानना मुश्किल हो जाए, क्योंकि these can be extreme statements, these can be statements which might be exceptions to the normal trend, ठीक है। तो इस कारण से क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो देयर आर हायर चांसेस कि यूपीएससी ये दे सकते, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई दीज हैव बीन मेंशन्ड। द जाट्स वर prosperous agriculturists. Panipat and Balladgarh became important trading centers. Under Surajmal, the kingdom of Bharatpur emerged. Bharatpur क्या है ये मैंने बता दिया, ये वाला region. When Nadir Shah attacked Delhi, many of the city's notables took refuge there. Bharatpur region में, ठीक है। When Bharatpur fort was built, while the Bharatpur fort was built in a fairly traditional style, at Dig कोई जगह है, the Jats built an elaborate garden palace combining the style seen at Amer and Agra. That also had the influence of the architectural influence of under जो शाहजहां, यानी मुगल इन्फ्लुएंस में इनके आर्किटेक्चर में देखने को मिली। ये देखो, द पैलेस कॉम्प्लेक्स एट डिग, नोटिस द बांग्ला डोम, ठीक है। तो दैट हैड आल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल, राइट, दिस वन। तो दैट आल्सो शोज कि भाई रीजनल के साथ साथ उनके ऊपर एक जो इंपीरियल इन्फ्लुएंस था, सेंट्रल इन्फ्लुएंस था, वो भी है। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस स्टेट्स व्हिच वर एस्टैब्लिश्ड when the Mughal Empire was disintegrating. The first one was the Mughal provinces which gained independence: Awadh, Bengal, Hyderabad. The second one was Rajputs, and the third one was the independent states which were emerging: Sikhs, Marathas, and Jats. Right. So here we have discussed. Here we are completing the 7th class NCERT. Right. And
सबको अब देखने को मिला होगा कि हाउ इजीली या हाउ कैजुअली वी टेंड टू निग्लेक्ट दीज एनसीईआरटीज, ठीक है, एंड कि इसमें क्या ही होगा, क्या पूछ लेंगे इसमें। बट अगेन एंड अगेन आई हैव शोन यू इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस कि कैसे यूपीएससी ने इन एनसीईआरटीज को बार बार यहाँ से उठाकर सवाल बनाए, राइट। प्लस इससे आपको ये भी दिख गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कशन है, राइट। सो बहुत अच्छे से ये एनसीईआरटीज पढ़ो। दीज 5 एनसीईआरटीज आर ऑफ वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। थीम वन, थीम टू, सिक्स्थ एनसीईआरटी आर पास वन, सेवेंथ एनसीईआरटी आर पास टू, एंड एट्थ एनसीईआरटी आर पास थ्री, राइट। सो वी हैव डिस्कस्ड द सेवेंथ आर पास टू, ठीक है। डू इट वेरी वेल, राइट।